या प्रीवियस सेशन में हम लोग देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को देखे थे, जिसमें कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग देखे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद जो है देखे थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पे हम लोग ये भी देखे थे कि किस तरीके से जो है डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, किसमें, पाइथन में जो है वो किस तरीके से डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व किया गया है। ओके, जबकि जावा में ऐसा प्रॉब्लम आता है और इसलिए जावा में जो है वो कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट इन पाइथन इट इज सिंपली सॉल्व। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लोग का क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली सारे इनहेरिटेंस यानी कि अभी तक जितने भी पढ़े कौन कौन से, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, वो सारे चारों इनहेरिटेंस जो है वो एक साथ आएंगे किस में, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में चारों जो है वो एक साथ आएंगे, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड। नेक्स्ट जो है वो क्या था, साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो साइक्लिक इनहेरिटेंस में भी हम लोग देखे थे कि साइक्लिक इनहेरिटेंस इज एक्चुअली नॉट एप्लीकेबल इन नॉट एप्लीकेबल इन पाइथन, बिकॉज साइक्लिक इनहेरिटेंस भी मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल मतलब जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट अ मीनिंगफुल थिंग, दैट्स व्हाई it is not applicable in everywhere, like in every programming language. Cyclic inheritance support is not available. Okay, so we can see here the cyclic inheritance, sir. What is the cyclic inheritance? Suppose you were in the class and it is inheriting some feature from the C2, and C2 also inheriting from C1. But at this certain level, can you please think, like suppose control is reading here. Okay, control means what, pvm is here. Okay, pvm is reading this class, otherwise this class is loading, in the memory. Suppose in the memory area, in the memory area, this class is loading. When class will load in memory area, sir? While object will be created. As the object will be created, at that time class will be loaded into the memory, sir. Okay, while this class will load, sir, after, at the time of loading, here I'm writing the c1, sir. Here I'm writing the c1. Okay, but I'm just trying to inherit the c2. But python virtual machine will told, sir, what python virtual machine will told, where is c2? Because before this one any class is there? No, before this one any class is there? No, because this is the first line, sir. Okay, before this one c2 is not available, so you can't inherit the c2, sir. This is the first reason here. Okay, this is the first reason here. Okay, and as we know that python is interpreter based programming language, so here some problem is created. So rest of the code is not going to test by the interpreter. Okay, so whatever code is there in next line, it is not going to execute, it is not going to interpret. Okay, are you getting the point? What is the problem here? Hmm. Getting the point or not? I already covered this one in previous session. Any doubt is there in cyclic inheritance? Okay, can you go for the next? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का है स्मॉल टॉपिक है, डोंट बी पैनिक, डोंट थिंक इट इज what we call
big topic or something? No, no, it's a small topic here. Okay, what is the topic name, sir? What is the topic name? What is the topic name? Mm, method method resolution order. What is the meaning of method resolution order? Okay, what is the meaning of method resolution order, sir? What is the meaning of method resolution order? सिंपल है। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले, देन वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स। ओके, व्हाट इज द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, पहले इसको समझते हैं। सपोज दिस वन, suppose I'm taking one class called A. This is class. Okay. After that, I'm taking one other class like B is the class, and after I'm taking some other class like C is the class. Okay. And again, I'm taking one more class like D is the class. A, B, C, and D is the class. Four classes are there. Okay. चार क्लास जो है यहाँ पर है, A, B, C और D. Okay. Four classes are there. Okay. In four class, in all these four class, suppose A is the parent class and its child is the B. B is the child class. A is the parent class and one more child is there. C is the child class. A parent class है, A का child क्या है? B, और A का child क्या है? C. B भी क्या है? Parent है और इसका child क्या है? D. और C भी जो है क्या है? Parent है और इसका child क्या है? D. Observe this point. Okay, this is very important. Okay, so you have to give more concentration. Okay, I have one more doubt, sir. What is my doubt, sir? What is my doubt? Let me tell the doubt first. Sir, D का पेरेंट कौन है? D का पेरेंट कौन है? D और C. ओके, B का पेरेंट कौन है? A. C का पेरेंट कौन है? A. क्या कोई A का भी पेरेंट है क्या? यस, नो। क्या कोई A क्लास का भी पेरेंट है? क्या कोई A क्लास का भी पेरेंट क्लास है या नहीं? A क्लास का भी कोई पेरेंट क्लास है? अंकिता, A क्लास का भी कोई पेरेंट क्लास है? सौरभ, नो सर। क्या कोई A क्लास का भी पेरेंट क्लास है? यहाँ पर क्लास है, ठीक है, यहाँ पर D क्लास है, यहाँ पर C क्लास है। D का पेरेंट है B, D का पेरेंट है C, A जो है B का पेरेंट है, C का भी पेरेंट है A। क्या कोई A का भी पेरेंट है? यस, यस, रिमेंबर, one common parent class is there called object. ऑब्जेक्ट एक क्लास होता है जो कि सभी क्लास का क्या होता है? पेरेंट होता है। ठीक है, इन जावा ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर।
Okay, so object is a class. Object is a class which is parent for every class. Remember, object is a class which is parent for every class. यानी कि अगर जो आप किसी क्लास का पेरेंट डिफाइन नहीं करते हैं, यानी किसी क्लास में किसी भी क्लास को आप इनहेरिट नहीं करते हैं, तो उसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सिंपल, आई एम आस्किंग टू यू। जिसका कोई नहीं होता उसका? सर सिंपल, भगवान होते हैं। समथिंग इन रियल लाइफ, व्हाट इज द थिंग? जिसका कोई नहीं तो उसका भगवान होता है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर जिसका कोई क्लास नहीं है, तो इसका कौन कौन क्लास है? इसका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ऑब्जेक्ट इज द parent of every class. Okay, this B is also indirect child of object. This C also indirect child of object. But which one is the direct child of object? A. A is the direct child of the object. D is indirect child for object, not direct. Are you getting the point or not? Observe the structure, sir. Any doubt is there? Any doubt is there? Okay. So what is the meaning of method resolution order? Okay, what is the meaning of, sir, method resolution order? Okay, what is our term, sir? First I have to type my term. Okay, what is the topic, sir? Method resolution, resolution order. Okay, method resolution order, method resolution order. Method resolution order, एक्चुअली में मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का मतलब ये है, मेथड रिजोल्यूशन का मतलब ये, सपोज सपोज एक जैसे मान लो आप एक क्लास के अंदर जस्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, सपोज करो इसके पास जो है वो इसके पास जो है वो M1 मेथड है, M1 मेथड। ओके, इसके पास जो है वो M2 मेथड है। ओके, इसके पास जो है वो M3 मेथड है। इसके पास जो है वो M4 मेथड है। ओके, M4 इज द मेथड। एक एक मेथड सारे क्लास में बने हुए हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्लास है तो इसमें तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही सबका बाप है। ठीक है, अब आप एक चीज आप समझो, समझने वाली पॉइंट क्या है। सपोज करो मैंने डी का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने क्या किया? डी का ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज करो ओ बी जे इक्वल टू डी, मैंने क्या किया? डी का ऑब्जेक्ट बना दिया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, समझिएगा पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल किया M3 मेथड को, सॉरी M M M2 मेथड को, M2 मेथड को सपोज मैंने कॉल किया M2 मेथड को। किस क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा?
M2 कहाँ पर लिखा हुआ है बाबू? डी के अंदर क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन करें, व्हाट इज माय डाउट सर, आई हैव वन मोर डाउट सर, व्हाट इज माय डाउट, डाउट ये है कि इस डी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो हम M2 मेथड को कॉल किए तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ गया मेरा, यानी सबसे पहले जो कंट्रोल है मीन्स पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो किसमें सर्च करेगा मेथड को, सबसे पहले कहां पर सर्च करेगा? दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सर्चिंग, दिस सर्चिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि आपने बहुत सारे क्लासेस को इनहेरिट किया है, ठीक है, अब इनहेरिट आपने किया है तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा? किसी भी मेथड को आप कॉल करते हो तो पहले तो ये नहीं पता रहता है कि किस क्लास में होगा ये मेथड, क्या है, वैसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, वन बाय वन ये सर्च करता है। ठीक है, वन बाय वन सर्च करता है तो उसका भी कोई प्रोसेस होगा या नहीं? यस, यस, ठीक है, तो सबसे पहले ये किस में सर्च करेगा, सबसे पहले किस में सर्च करेगा, ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है। सपोज अगर आप हमसे पूछे सर आप एक बार किस ऑर्डर में इनहेरिट किए हैं वो बतला दीजिए। सपोज मैंने एक क्लास बनाया है, ये मेरा पूरा कोड है, क्लास क्लास ए, सपोज करो क्लास ए है, और इसके अंदर जो है वो सपोज करो M3 मेथड लिखा हुआ है ना, M3 मेथड है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्लास ए, ए क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर M3 जो है वो मेथड है, M3 मेथड है, जस्ट एज्यूम M3 मेथड है, क्लास बी बनाया है, डी के अंदर इनहेरिट किए हैं किसको, ए को, बी के अंदर कौन सा मेथड है वो, M2 मेथड, ठीक है, उसके बाद है क्लास कौन सा, सी इज द क्लास, सी के अंदर कौन सा मेथड है, ए, ए को इनहेरिट किया गया, इसके अंदर कौन सा है, M1 है, उसके बाद जो है वो क्लास है कौन सा, डी क्लास है, डी के अंदर अब आप बोलेगा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है B C, और इसके अंदर जो है वो M4 मेथड। अब आप बताओ, अब तो पता चल गया, इसके बेसिस पर आप हमको बताओ, इसके बेसिस पर आप हमको बताओ कि सबसे पहले जो है वो किस में सर्च करेगा, अगर जो मैंने इस डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो सबसे पहले जो है वो किस में सर्च करेगा, किस क्लास में मेथड को सर्च किया जाएगा, जस्ट गेस, गेस समथिंग, अनम्यूट एंड टेल। पहले ए सर में सर्च करेगा। पहले ए में सर्च करेगा, उसके बाद नहीं मिला तो बी में, बी में सर्च बी में करेगा। किसी में, बी में। अच्छा बी में, एक डाउट है मेरे पास, क्या डाउट है, मैंने फिर से वही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करो आपके यहाँ हम आए, ठीक है, और आपसे हम पेपर मांगे, डू यू हैव अ पेपर, आप क्या बोलिएगा, आप पहले क्या कीजिएगा, पेपर कहाँ पर सर्च कीजिएगा, अपने घर में किसी दुकान पे दौड़ जाइएगा, सबसे पहले कहाँ सर्च कीजिएगा, अपने घर में पेपर के लिए। अगर पेपर आपके घर पे नहीं है तो फिर हो सकता है आप पड़ोसी से मांग के लाओ या फिर दुकान पर जाओ, वो सेकेंडरी टास्क है, प्राइमरी क्या है आपका, सबसे पहले अपने घर में। उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट किसका है,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका है ये, डी का। तो सबसे पहले इस M2 को ये कहाँ सर्च करेगा, डी के अंदर। रिमेम्बर, इज द फर्स्ट सर्चिंग पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पहले यहाँ पर सर्च करेगा डी में। अगर जो डी में तो M4 मेथड है, डी में तो है नहीं। अगर जो डी में नहीं मिला तो इसके पास दो और रास्ता है सर, बी और सी। आपके दो पड़ोसी हैं बी और सी, अब किसके पास जाए, बी के पास जाए कि सी के पास जाए। ओ, सबसे करीबी मेरा कौन है, इस डी का सबसे करीबी कौन है, बी। जी। उसके बाद क्या है, सी। अब ये कहाँ जाएगा, अपने सबसे सबसे करीबी के पास जाएगा, यानी सेकंड नंबर पे कहाँ जाएगा, यहाँ। उसके बाद भी अगर जो नहीं मिला तो, सपोज कि दो दुकान है, एक करीब में है एक दूर में है, तो सबसे पहले करीब वाला में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे, अगर जो बी में भी नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे, सी में। यानी कंट्रोल तीसरे नंबर पे कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अगर जो सी में भी नहीं मिला तब फिर मार्केट में जाना पड़ेगा, यानी आप जाएंगे 4। आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गॉट द ट्रावर्सल ऑफ द कंट्रोल, आर यू गेटिंग द ट्रावर्सल ऑफ द कंट्रोल कि नहीं, और नॉट। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रैवर्सिंग, क्लियर है या नहीं है, सौरभ, is it clear or not, नो सर, नो सर। no, 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 okay, well, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ये सी क्लास है और डी क्लास है, और सब जो है इनहेरिट किया गया है। ए जो है वो एन है, ठीक है। उसके बाद बी बी में ए को किया गया है, सी में ए को किया गया है, जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है, फिगर से तो पता चल रहा है ना किसको कहाँ पर इनहेरिट किया गया है। डी में दोनों को किया गया है, बी और सी को, ठीक है। तो अगर जो किसी भी मेथड के लिए, किसी सपोज के, डोंट थिंक अबाउट द दिस व्हाट वी कॉल M2 मेथड, नो नो, M2 मेथड के बारे में मत सोचो, किसी भी मेथड को हम सर्च किए तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ सर्च करेगा, इसी क्लास, अपने क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है वो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जिसको इनहेरिट आप किए हो उस, मतलब कि पहले डिराइव्ड क्लास में सर्च होगा, यानी चाइल्ड वाला में पहले सर्च होगा। अगर जो नहीं मिलेगा तब फिर वो पेरेंट में जाएगा सर्च करने के लिए, ठीक है। पेरेंट भी अगर एक से ज्यादा है तो फिर देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या है, किसको पहले इनहेरिट किए हैं, बी को, तो पहले बी में जाएगा, फिर उसके बाद किसको किए हैं, सी को, तो सी में जाएगा। अगर इसमें भी नहीं, ये दोनों में, तब फिर कहाँ जाएगा, फिर ए में जाएगा। ये क्लियर है, लेबल बाय लेबल सर्चिंग होता है, क्लियर है या नहीं। यस सर। सौरभ, इज इट क्लियर और नॉट, यस सर। क्लियर है ना। आई थिंक दिस इज सिंपल थिंग। दिस इज कॉल्ड द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। अब एक डाउट है सर, आप ये चीज तो आप थ्योरेटिकली दिखा दिए, क्या कोई इसका प्रैक्टिकली प्रूफ है, कैसा होता है, क्या कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है, यस, देयर आर टू मेनी प्रैक्टिकल प्रूफ्स, ओके, सिंपल। एक मेथड होता है, व्हाट इज द मेथड नेम, MRO, MRO इज द मेथड नेम, यानी कि MRO मेथड का यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल कहां पर जा रहा है। यानी कि सपोज आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल, सपोज करो एक क्लास है, क्लास ए इज द क्लास, कुछ नहीं लिखे बस पास, क्लास बी इज द क्लास, इसके अंदर ए को इनहेरिट किए, ए को इनहेरिट किए, कुछ नहीं लिखे पास। पास का मतलब कुछ भी नहीं है,
क्लास सी के अंदर किसको इनहेरिट किए हैं? ए को इनहेरिट किए हैं। जैसे स्ट्रक्चर है वहां पर, पास क्लास डी, डी के अंदर किसको इनहेरिट किए हैं? बी कमा सी को, इसके अंदर भी पास। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आर यू गॉट द पॉइंट? Yes, स्ट्रक्चर sir. तैयार हो गया यहाँ पर। डोंट थिंक अबाउट द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर जो हम लोग चाहें, यहाँ पर अगर जो हम लोग चाहें तो किसी भी क्लास से रिलेटेड मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर को हम लोग देख सकते हैं। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि किस ऑर्डर में कंट्रोल जो है वो जाएगा। सपोज सिंपल आप मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ डी देखना चाह रहे हैं, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर तक, व्हाट इज द वे? डी डॉट, व्हाट इज द वे? डी डॉट, अदरवाइज ए का देखना चाह रहे हो, ए का, ए सबसे पहले शुरू से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। डॉट ए डॉट एम आर ओ, दैट्स ऑल। अब ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा लिस्ट। लिस्ट कैसा रिटर्न करेगा ये? यू कैन सी ये, यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली हियर, you open the command prompt, py tester, oh, are you getting the point? Can you please observe here? You can see सबसे पहले किसमें जाएगा कंट्रोल? क्लास मेन। मेन का मतलब है क्लास के अंदर, दिख रहा है ना मेन क्लास कौन सा है? ए। उसके बाद कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट। चूंकि ए में कहीं भी इनहेरिट नहीं किए, कहीं कुछ भी इनहेरिट नहीं किए, यानी कि सबसे पहले कौन सा क्लास था? ए क्लास था ऊपर में, उसके नीचे था क्या? बी, और उसके नीचे था क्या? सी। तो ए क्लास के ऊपर भी तो एक क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब है ना कि सबका बाप एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड सब कुछ रहता है। तो यहाँ पर यही यही शो कर रहा है। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा? ए के अंदर। अगर ये नहीं, सर्च कहाँ? ऑब्जेक्ट के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई गॉट द पॉइंट। ये सबसे पहले सर्च किस में? ए में। अगर जो ए में नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट में जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो ए से रिलेटेड। चलिए बी का देखना चाह रहे हैं, बी का आप देखो। सबसे पहले यू कैन सी हियर, बी के किस में? सबसे पहले बी में सर्च करेगा। बी में अगर जो नहीं मिला तो फिर ए में जाएगा, और ए में भी नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर जो सी में देखना है तो क्या क्या होना चाहिए? सी में क्या होना चाहिए ऑर्डर? चल पहले सी में देखेगा, अगर जो नहीं मिला तो ए में जाएगा, ए में यहाँ पर, और अगर जो नहीं हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट में। यू कैन सी हियर द सेम थिंग, सी ए ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर जो डी का है तो डी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन सी हियर, सबसे पहले डी के अंदर जाएगा, अगर जो डी में नहीं मिला तो फिर बी में जाएगा, फिर अगर जो बी में नहीं मिला तो फिर सी में जाएगा, और सी में नहीं मिला तो ए में, और ए में नहीं मिला तो फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? अंकिता, Yes, sir. मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, इज इट क्लियर? सौरभ, समझ में आया ये या नहीं? Yes, sir.
ठीक है, ये था आपका मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट 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 जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे क्या, सुपर सुपर मेथड। ओके, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। I will share the what we call picture, okay, about the method resolution order. Next, super method. Super method. Okay. Anyone have some idea about the super? Super keyword is there in Java. What is the use of super keyword? Anyone? Ankita, you already studied Java. Okay. So, what is the meaning of super? Or have any idea? Otherwise, super. What is the meaning of super? Hmm? No idea. Okay. Simple. I am creating some situation. Then you can got understand easily. Okay. सपोज करो एक क्लास है, यहाँ पर एक क्लास है, क्लास का नेम है सपोज कुछ भी, P is the class. Okay. Inside P class, M1 is the method. M1 is the method. Print. This is the M1 method. Inside P. सिचुएशन को समझिएगा, you can get understand. एक और क्लास लेते हैं, क्लास C. ओके, C के अंदर भी क्या है, M1 मेथड है। सेम नेम मेथड M1 C के अंदर भी है। ओके, C के अंदर भी जो है वो M1 मेथड है, और इसमें P को इनहेरिट किया गया। inside C. C का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर जो हम कॉल करेंगे M1 को, कौन सा वाला कॉल होगा? सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर, एक P एक क्लास है, P एक क्लास है, इस क्लास के अंदर M1 नाम का मेथड है, और एक और क्लास है C, इसमें P को इनहेरिट किया है, और इसके अंदर भी क्या है, M1 नाम का ही मेथड है। ठीक है, अब अगर जो हम इस C क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे M1 मेथड को, कौन सा वाला एक्सेस होगा? मेथड रिजोल्यूशन के बेसिस पर बताइए, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर के बेसिस पर बताइए, कौन सा वाला एक्सेस होगा? C वाला या P वाला? अरे अभी पढ़े ना मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। Have you got ना मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर सर? Why are you too much confused?
You can see here on the basis of method resolution of order. Tell which one will got access first. Saurabh. You did not get. सबसे पहले अपने घर वाला एक्सेस करेगा। घर वाला का मतलब क्या है? सी वाला एक्सेस होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। इनसाइड सी, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ओके, यानी कि अगर जो एक क्लास के अंदर M1 मेथड है और दूसरे क्लास के अंदर भी M1 मेथड है, ठीक है, इनहेरिट किया गया है, तब भी सबसे पहले कौन सा वाला एक्सेस होगा? अपने वाला एक्सेस होगा सबसे पहले, ठीक है। जो सबसे नजदीकी रहता है वो एक्सेस होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मान लिए कि वो एक्सेस हो रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? सर आई डोंट वांट टू एक्सेस, I don't want to access this M1. What is my requirement? Sir, I don't want to access this M1. Okay. I don't want to access this M1. I want to access this M1. I want to access this M1. Then what I have to do? Then what I have to do? इस केस में यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए जब सेम नाम का मेथड एक से ज्यादा रहे, यानी कि पेरेंट क्लास में भी रहे चाइल्ड क्लास में भी रहे, तो पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सुपर का। सुपर मेथड का यूज हम लोग करते हैं इस केस में। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ओके, आर यू गॉट द पॉइंट? व्हेन वी हैव टू यूज द सुपर, सेम अगर जो सेम नाम का मेथड अगर जो है चाइल्ड में भी और सेम नाम का मेथड अगर जो पेरेंट में भी है, तो सबसे पहले अगर जो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो चाइल्ड वाला एक्सेस होगा, बट हम लोग चाइल्ड वाला एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं। अगर जो हम क्या चाह रहे हैं कि पेरेंट वाला एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? सुपर का यूज करेंगे। आई गॉट द पॉइंट? ओके, अंकिता, हैव यू गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो अब हम लोग देखेंगे इस सुपर मेथड को नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और डिफरेंट और भी कंडीशंस हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्टर के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर अगर जो दोनों में बना हुआ है तो बेस क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डिराइव क्लास वाला तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन सिर्फ मेथड के साथ नहीं है। सपोज ये आप बनाए हुए हो यहाँ पर, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, init, what is the constructor name sir? df init underscore underscore, ठीक है। आप एक कंस्ट्रक्टर लिए हो, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सपोज करो आप कुछ भी कोड लिखे हुए हो, कुछ भी प्रिंट, अदरवाइज आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हो सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 10, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिए हो। सेम इसी तरह का कुछ कंस्ट्रक्टर जो है आप बना दिए हो किसके अंदर? इस क्लास के अंदर भी। तो अब आप इस केस में बताओ सेल्फ डॉट डी सपोज करो आप लिखती हो डी इक्वल टू 20 समथिंग। तो अगर जो हम क्या चाह रहे हैं, अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
जैसे ही ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट करेगा कंस्ट्रक्टर, ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, समझे, अपने वाला कंस्ट्रक्टर को ये एग्जीक्यूट कर देगा। सर फिर तो ये कंस्ट्रक्टर तो वर्स्ट हो गया, ये कंस्ट्रक्टर तो बेकार हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। तो फिर इसका क्या बेनिफिट है, इसको आखिर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बाय यूजिंग सुपर। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जितने भी टॉपिक्स हैं सब मजेदार मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। सो you have to open your mind first, then you can understand easily. Don't be narrow minded. If you will be narrow minded, then you can't. Okay, so be the open minded, open your mind fully, everything you can understand easily, sir. Okay, that's all for today. Doubt is there?